Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher. So students, we have started learning our chapter 6 and the chapter is named as Seed Becomes Plant. So in previous part we talked about the conversation of Monu and Goody. So they were looking at some new plants grown under the neem tree and in the pot of holy basil, and then they were talking about those plants with each other. So today in our part 2 we will talk about germination of a seed. So let's continue our chapter. On the festival of Bach Bharas, that is Vats Dwadashi, Goody's mother soaked moong, that is green gram, mot, that is mot bean, and chana, that is chickpea grains, in water and tied them in a cotton cloth. The next morning, when she took out the moong, mot, chana seeds for worship, Goody asked her mother. So she asked something to her mother. So we are going to see what she asked. So here what we are watching that on the festival of Bach Bharas, there is a particular festival named Bach Bharas, that is Vats Dwadashi. What was Goody's mother doing? So she soaked some moong, mot and chana grains in water and tied them in a cotton क्लोथ. तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि जो गुड्डी की मम्मी थी उन्होंने एक त्योहार आता है, कौन सा, बच बारस, या जिसको वत्स द्वादशी भी कहते हैं. तो उस त्योहार के दिन उन्होंने क्या किया कि कुछ मूंग, कुछ मोट और कुछ चना के जो बीन थे, जो वहाँ पर कुछ दाने थे, वो लिए और उन सबको कुछ समय तक पानी में डाल के और उसको एक कॉटन के गीले कपड़े में टांग कर रख दिया. तब जब दूसरी सुबह उसकी माँ ने, जो गुड्डी की मम्मी हैं, उन्होंने जब उनको मूंग, मोट और चना के जो सीड थे, जो बीज थे, उनको जब निकाला पूजन के लिए, तब गुड्डी ने अपनी माँ से कुछ पूछा. क्या पूछा? व्हाट गुड्डी आस्क्ड, लेट्स सी. गुड्डी आस्क्ड, मदर, what is this thread like white outgrowth emerging from inside the green gram? So जब उसकी माँ ने, गुड्डी की माँ ने ये सारे मूंग, चना और मोट जो चीज़ें थी, इनको बाहर निकाला पूजन के लिए, तब गुड्डी ने उनको देखा और गुड्डी ने कहा कि ये हरे हरे चनों में से ये जो हरे हरे ग्राम्स हैं, चने हैं, इनमें से ये अचानक से सफ़ेद सफ़ेद क्या निकलने लगा है. देन मदर सेड, दिस इज़ इट्स रूट. आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट only, and this is known as germination. So we talked about this process in our previous parts also, when Monu told Goody that the entire plant is actually formed from the root part only. So here Goody's mother also told her that this white outgrowth is the root actually, and the entire plant is from this root only, and this process is known as germination. तो गुड्डी की माँ ने गुड्डी को बताया कि ये जो सफ़ेद आपको हिस्सा नज़र आ रहा है बाहर निकलता हुआ, ये क्या है? ये जड़ है, और इसी जड़ से वास्तव में कोई भी पूरा पौधा बनता है. और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से जब बीजों से ये हिस्सा निकलने लगता है, सफ़ेद हिस्सा जिससे हम जड़ जानते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही जर्मिनेशन कहते हैं. तो ये बात गुड्डी की माँ ने गुड्डी को बताई. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज जर्मिनेशन. Then you have to conduct an activity at your home. This is a simple activity. You can conduct this activity easily. So what you have to do, you have to take 3 balls first of all, okay. Then in the first ball, in a ball, take some grains of green gram or mot bean or chickpea. You can take any of these. You need not to take all these. You can take any of these, either green gram or mot or chickpea, and fill it with water. So this will be the first condition. In the first ball, you simply have to take some grains of either moong or mot or chickpea
एंड फिल द bowl विथ वाटर। तो बच्चों आपको एक गतिविधि करनी है जो बहुत छोटी, बहुत आसान है। आपको एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में क्या करना है, थोड़े से या तो आप मूंग या फिर मोठ या फिर चने लेकर के उनको उस कटोरी में डाल के और उस कटोरी को पानी से आपको भर देना है। तो ये पहली स्थिति, मैंने आपको कहा कि 3 बॉल आपको पहले से लेके रखनी है। तो पहली बोल में या पहली कटोरी में आपको क्या करना है कि थोड़े से मूंग या मोठ या चने, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, और बहुत थोड़े से चाहिए, बहुत सारे ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े से मूंग, मोठ या चना कुछ भी उस कटोरी में डाल के और उसको क्या करना है, पानी से भर देना है। सो यू हैव टू फिल द बॉल विथ वाटर in the first condition. Now in the second ball, place some grains of green gram or moth bean or chickpea in a wet cloth and cover them with that wet cloth. Now दूसरे बॉल में आपको क्या करना है, दूसरी कटोरी में क्या करना है, जैसे आपने पहली कटोरी में कुछ चने या मूंग या मोठ जो भी लिए हैं वैसे ही आपको यहाँ भी लेने हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इन्हें गीले कपड़े से ढक के रखना है। कटोरी में क्या करना है, गीले कपड़े में लपेट के ढक करके रखना है। Now what you have to do in the third ball, let's see. In the third ball, take some grains of green gram, moth, bean or chickpea and leave them ओपन। नाउ तीसरी कटोरी में भी आपको कुछ मूंग, चने या मोठ लेने हैं और उसे सिर्फ ऐसे ही कटोरी में रख देने। तो आपने कितनी बोल ले ली, कितनी कटोरी ले ली, 3 कटोरी। अब आपको यहाँ तो तीनों चीज़ें नहीं चाहिए। आई एम अगेन टेलिंग यू, आइदर यू नीड मूंग और मोठ और चिकपी, या मूंग या चना या मोठ, इन तीनों में से थोड़े से कोई से भी आपको बीज चाहिए, सीड्स चाहिए, और फिर आपको 3 अलग अलग स्थिति में रखना है। इन द फर्स्ट कंडीशन आपको उसे कटोरी में डाल के और पूरा कटोरी को पानी से भर देना है। दूसरी परिस्थिति में आपको गीले कपड़े में लपेट करके इन्हें रखना है, और तीसरी परिस्थिति में आपको कटोरी में इन्हें ऐसे ही खुले में डाल देना है। नाउ रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन रिलेटेड to their germination for few days for all the 3 balls in your notebook. Now simply you have to prepare a table in your notebook. So I'm going to show you this table and then you have to record the observation. आपको तीनों कटोरियों को ध्यान से देखते रहना है कुछ दिन तक, और कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है, ऑब्जर्व करनी है। तो क्या ऑब्जर्व करना है आपको, तो देखते हैं पहले टेबल कैसे बनानी है उसके लिए। So there is a table. So these, here you have to mention the days, like for 4 or 5 days maximum you have to do this thing, like for 4 or 5 days will be sufficient. Now status of germination of green gram or moth bean or chickpea grains, आपने जो भी ग्रेन लिए हैं एक ही को लिखना है आपको यहाँ पर, या तो आपने मूंग लिए हैं या चने लिए हैं या मोठ लिए हैं। अब पहली बॉल, दूसरी बॉल और तीसरी बॉल की जो स्थिति है, यानी पहली कटोरी में पहले दिन जर्मिनेशन हुआ या नहीं हुआ, शुरू हुआ या नहीं हुआ। नाउ हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट जर्मिनेशन हैज स्टार्टेड, यू हैव टू वॉच फॉर दैट वाइट आउटग्रोथ फ्रॉम दोज सीड्स। ओके, तो पहली कटोरी में पहले दिन, पहली कटोरी कौन सी, जहां आपने उन सीड्स को पूरी तरीके से पानी में डाल दिया है, पानी भर दिया कटोरी में। दूसरी कटोरी कौन सी थी, वो कटोरी जहां आपने वेट क्लॉथ में यानी गीले कपड़े में उन सीड्स को लपेट कर रखा है। और तीसरी कटोरी जिसमें आपने खुले में ही सीड्स को रख दिया है। सो यू हैव टू चेक कि डे 1 पे जर्मिनेशन होता है नहीं होता। लाइक बॉल नंबर 1 में यू फाउंड नो जर्मिनेशन, फिर डे 2 पे चेक करना है कि वेदर देयर इज जर्मिनेशन और नॉट, डे 3 पे चेक करना है, डे 4 पे चेक करना है। सिमिलरली बॉल नंबर 2 में भी आपको देखना है जर्मिनेशन स्टार्टेड। अगर आपको वाइट आउटग्रोथ दिखेगा तो आप क्या लिखोगे, दैट जर्मिनेशन स्टार्टेड। इधर आपको मिला नो जर्मिनेशन, सपोज दैट। सो सिंपल, यू हैव टू डू दिस थिंग फॉर मैक्सिमम 4 days। ओके, तो बच्चों इस प्रकार आपको टेबल बना लेनी है एक सिंपली, और ये गतिविधि आपको घर पर करके देखनी है कि क्या दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक भी
पहली बॉल में, दूसरी बॉल में या तीसरी बॉल में किस में जर्मिनेशन होने लगता है सीड्स में और किस में नहीं होने लगता है. सो व्हेन यू विल डू दिस एक्टिविटी देन यू हैव टू थिंक अबाउट सम क्वेश्चंस. देयर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स सी. You have not to write the answers of these questions, simply you have to think about this question. So the first question is, in which bowl the germination of grains started from the day 1? So dear students, you will find after conducting the activity that in bowl number 2 the germination started from the day 1. तो बच्चों जो दूसरी वाली कटोरी जिसमें आपने गीले कपड़े में भिगो करके उन सीड्स को रखा है, वहाँ जर्मिनेशन शुरू सबसे पहले हो जाएगा. डे 1 से ही वहाँ आपको जर्मिनेशन दिखने लगेगा. Why were the grains tied in a wet cloth for germination? So the second question is, why were the grains tied in a wet cloth for germination? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्यों ये जर्मिनेशन के लिए हमने उन सीड्स को एक गीले कपड़े में ही रखा था. बिकॉज दोज सीड्स एक्चुअली नीड प्रॉपर ह्यूमिडिटी एंड एयर फॉर जर्मिनेशन. सो देयर इज़ अ नीड ऑफ रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी एंड एयर फॉर जर्मिनेशन एंड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू दैट वेट क्लोथ ईजीली. तो बच्चों जर्मिनेशन के लिए, किसी भी बीज के जर्मिनेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उन बीजों को विशिष्ट मात्रा में आर्द्रता की और हवा की आवश्यकता होती है, एक सही तापमान की आवश्यकता होती है और उस गीले कपड़े द्वारा हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं. देन द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई देयर इज नो जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स. देयर इज नो जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ द सीरियल्स केप्ट इन आवर home. So we keep different cereals and seeds at our home for consumption. So why there is no germination in those seeds and cereals? तो तीसरा प्रश्न यहाँ ये है बच्चों जो हमें सोचना है कि जो हम घर पर अन्न रखते हैं या जो भी हम अनाज रखते हैं, दालें रखते हैं, उनमें जर्मिनेशन शुरू क्यों नहीं हो जाता है. तो इट्स क्वाइट सिंपल, वी कीप देम ड्राई. हम उनको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वो बिल्कुल सूखे ही रहते हैं, हम उन्हें पानी नहीं लगने देते, हम उनमें आर्द्रता का विकास होने नहीं देते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन अ ड्राई प्लेस एंड वाटर इज़ नॉट टच्ड टू देम लाइक कोई किसी भी तरीके से बारिश का पानी भी हम उन पर पड़ने नहीं देते हैं. सो दीज आर द फ्यू things you will surely know the answers after conducting the activity. Here I have told you the answers, but for surety you have to conduct that activity. तो बच्चों जब आप वो गतिविधि करेंगे, 3 कटोरियों में जब आप अलग अलग तरीके से उन ग्रेन्स को रखेंगे, तब आप डेफिनेटली इन प्रश्नों के जो उत्तर मैंने आपको बताए हैं उनसे सहमत हो पाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास डियर स्टूडेंट्स. वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग.